आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। राय बज चुके हैं उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए हैं। अमित शाह की जानिब से आईन 123वां तरमीमी बिल 2025, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज तरमीमी बिल 2025 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किए हैं। ये तमाम बिल इंतजामी ढांचे को मजीद मुअस्सर बनाने और गवर्नेंस से जुड़े मामलात को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाने के मकसद से लाए गए हैं। अहम बिलों पर अब ऐवान में बहस के बाद ही फैसला लिया जाएगा। बड़ी और अहम खबर, जहां वज़ीर दाखिला की जानिब से इस बिल को पेश किया गया है, वहीं पर दूसरी तरफ से कई लीडरान की जानिब से इस बिल पर जो है इसका अपोज किया गया है। वज़ीर आला और वज़रा के हटाने के लिए हुकूमत को होंगे मजीद इख्तियारात। बिल कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा और अगर मुंतखब रहनुमा गिरफ्तार या हिरासत में हो तो हटाने का होगा इख्तियार। जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 में तरमीम होगी। आईन के आर्टिकल 75, 164, 239 ए में भी तरमीम और 30 दिन मुसलसल गिरफ्तार रहने वाला वजीर ओहदे से हटाया जा सकता है। नया कानून वजीर आला और वजीर को हटाने का तरीका कार बयान करेगा। बिल पर MP, रियासती CM और UT वज़रा बशमूल जम्मू कश्मीर पर यह लागू होगा, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से इस बिल के बाद पेश किए जाने के बाद ही ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और उसके साथ साथ ही मनीष तिवारी की जानिब से इसकी मुखालफत की गई है। पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन, भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require offence to be made. Sir, the chief minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President, who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo movement. When Gestapo was found in Germany, this government is hell-bent on creating a police state
This will be a death knell and leash an elected government, sir. Indian constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this house that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honorable Home Minister, despite his promise on BNS 152, 152 has been used against a senior journalist, Siddharth Vardhan, Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए. There should be rule of law. और उस rule of law, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता. You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I oppose this bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet, and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number 3, it distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through mere custody. इधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा ने पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले बिल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ये रियासतों में वज़राए आला और अपोजिशन लीडरों को दबाने का बीजेपी का एक और तरीका है और उन्हें इसे आमराना हुक्मरानी करार दिया है और इस इकदाम की शदीद मजम्मत की है. इन बातों का इज़हार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नायकू से बात करते हुए किया. का ताल्लुक है, ये बीजेपी की मानसिकता को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है. I have been telling it off and on, again and again, that democracy in India is being taken over by autocracy. और उस autocracy का ये बदतरीन मिसाल है, जहाँ पे वो elected representatives को भी जो उनकी लाइन नहीं टो करेंगे या जो उनका पार्टी एजेंडा उसको टो नहीं करेंगे, तो उन्होंने अब मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स को भी नहीं बख्शा. ये अथॉरिटेरियन तरीका जो है, अथॉरिटेरियन भी है, मेजॉरिटेरियन भी है और एक खौफ व हिरास का माहौल जो वो पैदा कर रहे हैं. और मैं समझता हूं कि ये कहीं डाइवर्शनरी भी है कि इस वक्त मुल्क में इतने सवालातों में ये घिरे हुए हैं, इतने सवालातों में ये दबे हुए हैं, तो डाइवर्शन देने में ये माहिर हैं कि कोई भी जो मुद्दा होता है उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के वास्ते इनके पास जैसे रेडीमेड इश्यूज होते हैं जिसको उन्होंने 1-2 दिन के अंदर अंदर रेज करना होता है. अब बिहार की हालत देख लीजिए, अब ये वोट चोरी का मामला देख लीजिए. वोट चोरी जो है अब एक एस्टेब्लिश ये हाउस होल्ड नेम बन गया, पूरे मुल्क में हाउस होल्ड नेम बन गया. मैं तो बहुत खुश हुआ जब हमारे यहाँ पे यूथ विंग ने भी उस चीज को आगे बढ़ाया और गाड़ियों के ऊपर पोस्टर्स ये स्टिकर्स लगाए. So it has become a household issue now कि मुल्क में वजीर आजम जो है वो भी चोरी करके, वोट चोरी करके वजीर आजम बना हुआ है, क्योंकि उनका जो पिछला इलेक्शन रहा है वो भी काफी डाउटफुल है और अंडर स्कैनर है. ऑटोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर हो, ऑटोक्रेटिक चीफ मिनिस्टर हो, आई डोंट थिंक कि उनके ऊपर ये इफेक्ट होता है. ये दिस इज अ कवर अप. अगर वैसी बात है तो दिस इज अ कवर अप. हमने वो उस बिल में ऐसा नहीं पढ़ा, मे बी इस दौरान में जो पेश हुई हो तो उसमें उन्होंने ये किया हो. बट अगेन, when this bill is, when this tool, when this weapon is in the hands of BJP, इसका ये दुरुपयोग ही करेंगे. ये सही उपयोग इसका नहीं होगा
and an autocratic sitting in the chair, it would not be used against him. इसीलिए तो मैं इनको अंधी गुंगी बहरी सरकार कहता हूं। तो वो तो इस बात को सुन ही नहीं रहे। दैट इज द ऑटोक्रेटिक मिजाज जो इनका बना है, वो यही है कि लोगों की एस्पायरेशंस को ये नगेट करना जानते हैं। उन एस्पायरेशंस को उसका वैल्यू नहीं करना जानते ये, और उसको रिस्पेक्ट नहीं देना जानते। तो वरना हमारी जो डिमांड है और हमारी जो जद्दोजहद है पिछले 8 इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान मुंतजिर महदी ने पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले 3 बिलों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जब तक बिल पेश नहीं किया जाते तब तक इस पर उन्होंने कहा है कि कबल अज़ वक्त होगा। ताहम बिल पेश किए जाने के हवाले से उन्होंने कहा कि एक मज़बूत कदम है और निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश है। तब उन्होंने खबरदार किया कि ऐसी हरकतों को सियासी इंतकाम के आले के तौर पर नहीं लाया जाना चाहिए, जहां बीजेपी उन्हें सिर्फ अपने मफादात के लिए या अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। करप्शन के खिलाफ है। जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, बड़े बड़े जराइम में मुलव्वस हैं, उनको इलेक्शन में बैन करने का जो संदेश आया है, इन चीजों को हम सराहना करते हैं। क्योंकि अगर मुल्क को एक पेज पे लाकर साफ सुथरा निजाम देना है, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन देनी है, करप्शन फ्री कंट्री बनानी है, तो जितने भी क्रिमिनल्स जो इस वक्त भी पार्लियामेंट में बहसते पार्लियामेंट मेंबर नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। देश के लिए एक अच्छी बात होगी। और करप्शन को इरेडिकेट करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए जो इकदाम इसमें वजह किए गए हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। और ये चीज कि अगर इसमें कोई भी होगा, स्टेचर को कंसिडर न करने के बगैर, जो बिल में सुना है, प्रपोज किया गया है कि अगर इसमें किसी भी हैसियत का ऊंची हैसियत की कोई शख्सियत भी मुलव्वस हुई, इवन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर कोई भी होंगे, तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर 30 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। जहां तक ये चीजें हैं, वहां इन चीजों को हम जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जिला कैपेक्स बजट 2025-26 CDF स्कीम, रेवेन्यू जनरेशन और सोशल वेलफेयर से जुड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत की है। इजलास में वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी है कि अवामी सतह पर तरक्याती मनसूबों को अवलीन तरजीह दी जाए, रेवेन्यू में इजाफा किया जाए और ये यकीनी बनाया जाए कि फलाही स्कीमों का फ़ायदा सही मानों में मुस्तहक लोगों तक पहुँचे। उमर अब्दुल्ला की जानिब से दस्तखती मुहिम चलाने का खैर मकदम करते हुए अपनी पार्टी के तर्जुमान मुंतजिर महदी ने कहा है कि ये एक अच्छी और मजबूत पहल है। अब जबकि उमर अब्दुल्ला साहब निकले हैं कंपेन चलाने के लिए, सिग्नेचर कंपेन करने के लिए, स्टेटहुड के लिए, तो अच्छा इकदाम है। कहीं ना कहीं तो लगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि लोग मुतहरिक हैं, ये भी पता चलेगा कि हाँ, यहाँ के अवाम इसके साथ है, लिहाजा न हम इसकी मुखालफत करते हैं, न तनकीद करते हैं। एक अच्छा कदम है, क्योंकि स्टेटहुड अभी मिला नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानियां दी, उसके बावजूद नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि हम अभी उस मसले को हल कराने के लिए तशनबलब है। इसलिए उस सिमत में जितनी भी तामीरी कोशिश की जाए, बहुत अच्छी। मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। डोगरिया के करीब भारी पत्थर और पस्सियां गिराने की वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से शाहरा से मलबा हटाने का काम जारी है और मुसाफिरों और ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो शाहरा के मुतल्लिक ताज़ा जानकारी हासिल करने के बाद ही मुगल शाहरा पर अपना सफ़र शुरू करें। इधर तहसील मंडी के साउजिया इलाके में आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब एक रीछ ने मकामी खातून पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। रोहीना नामी खातून को जख्मी हालत में जिला अस्पताल पूंछ मुंतकिल किया गया, जहां महकमे सेहत के डॉक्टरों ने बरवक्त इलाज फराहम किया है। डॉक्टरों के मुताबिक खातून की हालत खतरे से बाहर है। उधर मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में रीछ की तादाद बढ़ गई है, लेकिन बदकिस्मती से इंसानी जानों के बचाने के लिए मुतल्लिका महकमे की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं।
ये सर एक्चुअली हमारा ये केस जो है ये पीएससी सब्जियां गगड़िया से है। ये सुबह को इंसिडेंट हुआ 9:30-10 बजे के करीब। ये तो ऐसे वाक़ात होते रहते हैं क्योंकि हमारा काम भी यही है। हम 108 के पायलट जिसको कहा जाता है, हम रात दिन भी चलते हैं। परसों खुद मेरे साथ भी ये वाक़ा रात को 1 बजे हुआ। मुझे भी आगे एक रीच आ गया, मैंने भी खुद जान बचाई। लेकिन ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, तो देखना क्या है, करना क्या है कि कहीं पे कोई टीम या कोई वर्ल्ड लाइफ के लोग जो हैं आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। बहुत सारे नुकसानात हुए। तो अब हमारी गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इनकी थोड़ा देख रेख करे और देखे कहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होते हैं और लोगों की जान बचाएं। मोहम्मद रफ़ी। क्या हुआ है? ये सब्जियाँ गगड़ियाँ धन्ना में एक गांव पड़ता है, उधर थोड़ा बालू ने अटैक किया है। क्या नाम है इसका? नाम है राहिना बेगम, वाइफ ऑफ मुश्ताक अहमद। किस टाइम हुआ ये तकरीबन 9:30 पौने 10 के करीब हुआ। गाँव में कोई प्रोटेक्शन नहीं है जिसकी वजह से? नहीं, प्रोटेक्शन नहीं है। बड़ी हॉस्पिटल में लगे थे? मंडी नहीं लगे, डायरेक्ट। श्रीनगर में अब्दुल्ला ब्रिज के करीब जहल में दौरान शब एक हाउस बोट में आग लग गई है। हाउस बोट मालिक का कहना है कि दौरान शब अचानक से हाउस बोट से आग नमूदार हुई और देखते ही देखते पूरे हाउस बोट इसकी लपेट में आ गई। आग की इस वाक़े में अगरचे हाउस बोट पूरी तरह खाकिस्तर हो गई, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुतासरीन का कहना है कि आग की इस वारदात में करीब 55 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह फिलहाल मालूम न हो सकी। जनाब, रात को 3 बजे आग ज़ाहिर हुआ बोट में, तेज से आग ज़ाहिर हुआ। ये पता नहीं हमको चला ये आग किससे हुआ। और मैंने फिर कोशिश किया पहले फैमिली को बचाने का और फिर मैं खुद भी बच गया। मुझको इसमें जो भी घर में सामान था सब डैमेज हुआ है। और हमारे पास फायर सर्विस आया, लेकिन वो कम से कम 3 घंटे के बाद में आया। हमको इस जालिम में कोई फायर सर्विस है नहीं। अगर जालिम में फायर सर्विस होता था बोट में इतना डैमेज नहीं होता था। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, हमको फायर सर्विस का हाउस बोट वाले के लिए, वो खाली हाउस बोट के लिए नहीं होगा सेफ्टी, वो होगा होटल वालों के मकान हैं दाएं बाएं जालिम में, उनके लिए भी वो होगा। जो भी मेरे ये इसमें था वो सब चला गया। मेरे फैमिली का जो था, मेरे 5 बच्चे हैं, उनका भी जो सामान मैंने जमा कर दिया था उनको शादी वादी के लिए, गोल्ड वोल्ड, वो सब चला गया सर। और बाकी जो भी मेरे पास यहाँ पर था वो सब कुछ लूट गया। लेकिन मैं ऊपर अल्लाह से एक दुआ करता हूँ, फैमिली बच गई, मैं बच गया हूँ। अब मैं डीसी साहब से ये अपील करता हूँ, अगर जालिम में जो भी हाउस बोट वाले हैं उनके लिए कुछ सेफ्टी रखेंगे फायर सर्विस की, वो मेहरबानी होगा। और अगर डीसी साहब चाहता है मेरे को देखो, वो सर्वे कर सकता है मेरे को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये ऑनेस्टी है, ये तो ट्रू है, ये झूठ नहीं है। ये कोई कितना नुकसान हुआ? जम्मू में ई बस यूनियन ने आज से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। यूनियन का कहना है कि इस वक्त उन्हें इतनी कम तनख्वाह दी जा रही है कि खानदान की कफालत करना मुश्किल हो गया है। ड्राइवरों और कंडक्टरों ने हुकूमत पर इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बार बार आवाज़ उठाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यूनियन लीडरों ने कहा है कि कई मुलाजमीन को अपने मुतालबात उठाने पर नौकरियों से निकाल दिया गया। यूनियन का वाज़ेह तौर पर कहना है कि जब तक तनख्वाह में मुनासिब इजाफा नहीं किया जाता तमाम ई बसें सड़कों पर नहीं चलेंगी। हड़ताल की वजह से शहर में लोगों को आमदरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। आम शहरियों ने भी इंतजामिया से जल्द अज जल्द इसका हल निकालने की अपील की है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहाल हो सके। साल हो गए बीबीजी कंपनी में सर। जब इन्होंने लगाया था हमें, तो इन्होंने हमें बोला था कि भाई हम आपको 18,000 सैलरी देंगे।
उसमें काट कूट के आपके अकाउंट में 16,000 तक आएगी। लेकिन सर जब ट्रायल चल रहा था, ट्रायल पे हम रहे, तो इन्होंने जो हमें ऑफर लेटर दिया, उसके बाद जब हमारी ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग लेटर तो इन्होंने हमें आज तक नहीं दिया। अपॉइंटमेंट लेटर जो हमारा है वो तो दिया ही नहीं आज तक, वो हमें पता भी नहीं है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, हमें पता ही नहीं है। तो सर जब हमने बोला सर पहले मंथ की सैलरी आई 14,182 रुपये, हमने इनको पूछा कि हमारी सैलरी कम क्यों आई। इन्होंने बोला जब बसें चलेंगी, जब आपकी गाड़ियाँ चलेंगी तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन सर 18 महीने हो गए, ना सैलरी बढ़ी और ना कुछ हुआ, ना हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला। आज अगर बाहर हमारा झगड़ा हो जाता है किसी के साथ या कुछ भी, या गाड़ी लग जाती है, पूरा इन्होंने हमें बोला था कि 10% कटेगा, वो भी अगर आपकी गलती होगी। आज हमसे पूरा पैसा काटा जा रहा है। अगर हर महीने 14,000 सैलरी है सर, उसमें से हर महीने 2,000 5,000 काटा जा रहा है। अगर हम पूछें ये किस चीज़ का काटा जा रहा है, तो ये हमें बोलते हैं कि ये आपकी सीट बेल्ट है या कुछ है, हमें रसीद तो कोई है। 8 घंटे काम करो, मगर ये हमारे से 16 घंटे का काम ले रहे हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है? सर सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो हमने किससे बात की? अंदर हमने सबसे बात की हुई है। कुछ ऐसे अफसर हैं जो हमसे पैसे मांग रहे हैं, कहते हैं कौन सी रूट की गाड़ी चाहिए, इसका 8,000 रुपये दो, 7,000 रुपये दो। यानी कि हमें इनसे सैलरी लेनी चाहिए, हमको इनसे पैसे लेने चाहिए, हमसे मांग रहे हैं। टोटल सैलरी कितनी है? 14,182 रुपये। अब क्या डिमांड है? डिमांड है हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। तो इनको जो सैलरी दे रहे हैं 10-12 हज़ार रुपया सैलरी दे रहे हैं अपने हक के लिए। जब भी जो इंसान यहाँ पे अंदर खड़ा होता है कि मुझे मेरा हक दिया जाए, तो उसको डराया जाता है कि तुम सीधा टर्मिनेट किया जाएगा। जो यहाँ पे जितना वर्कर यहाँ से टर्मिनेट हुआ है, उनका रीज़न पूछा जाए इनको कि टर्मिनेट किया क्यों है, कि मैं इतना तक तो मैं समझता हूँ कि गलती उसकी कुछ नहीं है। गलती बस इतना है कि 10 मिनट वो लेट हो गया, 20 में लेट हो गया, तो आज भी मैसेज पढ़ सकते हो, वर्ष में पढ़े होंगे कि ये होल्ड कर दिया गया, इसको टर्मिनेट किया गया। अगर किसी का कोई रीज़न होता है, अगर छोटा सा ग्लास टूटेगा उसकी चट्टी जो कि मतलब वो एक ड्राइवर बुराई करेगा। 12,000 रुपये 10,000 रुपये सैलरी देंगे, हमें कोई शीशे का पैसा काट रहा है, कोई किसी चीज़ का पैसा काट रहा है, उसमें से हम 3,000 रुपया रूम का किराया देंगे। हम खाना खाएंगे, अगर एक वक्ता खाना खाएंगे तो 100 रुपया जाता है एक पल के लिए। 3 वक्ता 9,000 खाना का क्या, 3,000 रूम का गया। आप बताइए हमारा परिवार कैसे चलेगा? हमारे बच्चे स्कूल पढ़ाएंगे, उन्हें जहाँ खाना खिलाएंगे, जहाँ खुद खाना खाएंगे। जनूबी कस्बा त्राल के बिजलीघर के नज़दीक आज ट्रैक्टर ड्राइवरों ने खामोश एहतजाज दर्ज किया है। एहतजाजी ड्राइवरों का कहना था कि उन्हें नालों से खाम मटीरियल उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसके नतीजे में उनके घरों का गुजर बसर मुश्किल हो रहा है और उनके अहल खाना को 2 वक्त की रोटी मैसर आना दुश्वार बन गया है। ड्राइवरों ने सरकार से मुतालबा किया कि उन्हें दोबारा काम करने के लिए इजाज़त फराहम की जाए ताकि वो अपने ख़ानदान की कफालत कर सके। दिवन कम कर वनकन कहें ट्रैक्टर 6-7 लाख रुपये फाइनानस यम किन दिक्कत हेकान वो बैंकस भरित कहें यपर 4-4-5-5 मजूर ट्रैक्टर से कम कर तिहद गर पलन अथ पे मगर दिवन वसन और अगर वन दोस फेर या 2 खाड़न तम रपस 2,000 या रपस 3,000 कनान मगर चालान ग 30,000-40,000 रुपये क्या करो सर अम मूजूब वनकस एहतजाज कर परमिशन रॉयल्टी बरो रॉयल्टी तुलो पूरा लीगल तरीकस मज माल मगर तम खुद गवर्नमेंट अपील कर दिव परमिशन तुलो ना परमिशन दिवान कहें वन अम मूजूब एहतजाज कर कि करो तो करो क्या गए वारे लटन चालान गमित सारी ट्रैक्टर वाले आड़स मज दिवान आज वसन टोटल दिवान आड़स मज वसन कहें अम बगैर कह सहारे अम बगैर कह सहारे बेल सह JCB वोल ना कह टिपर वोल ये कहें खाली ट्रैक्टर वाल बेलो सत बाजर बरान बाजर बरान ट्रैक्टरस फेर 1-2 दोस अनान ये आज वोत लगभग 3 रेत अस वोत गर बिहत बचन फीस सह पे ट्रैक्टरस 7-7 लाख रुपये बकाया तिम अनो कत 3 रेत वत गर बिहत योर बैंक वाल कर फोन किस्त योर बच्चे माना स्कूल गन फीस नसा 4। नाजरीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।